Televizorda izlemek için kanalımıza mutlak abone olun. Cinemedia. Erlaring edi-yu, endi dushmanga aylanishdimi? Men ularga hech qanaqa yomonlik qilmaganman, lekin ular ustimdan yozib berishdi. Shu kunga ham yetib keldik. Afzal, bu yaramas ayolga necha yil berisharkan? Bu ayolning advokati o'zidan ham ustami. Erini qara, yasam olganini. Uchrashuvga kelganga o'xshaydi. Assalomu alaykum. Yaxshimiz, yuring ketdik oy. Shoshmang. Qani? Tezlashamiz. Qani kiring. Namuncha kech qolib ketdingiz. Xavotir olmang, hammasi joyida. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Feruza Shodiyeva jami 4 erkakni katta miqdorda mol-mulkini o'zlashtirishda ayblanadi. Mana bu yerda bank hisoblari va yetkazilgan jami zarar miqdori yozilgan. Hurmatli sudya, mana marhamat. Hujjatlar bilan tanishib chiqing. O'tiring. Qolgan ikkita jabrlanuvchi sudda ishtirok etmayaptimi? Ular davoim yo'q deb yozib berishgan. Xatlari ham taqdim etilgan. Xudoga shukr. O'shalarda insof bor ekan. Mana bulardagi bas emas ekan. Haqiqiy erkakni ishini qilishibdi. Feruza Shodiyeva bu jinoyatlarni bir o'zi qilmagan. Balki kelini hamda o'g'li yollangan. O'g'li hamda kelinini turmush o'rtoqlarining uyiga xizmatchi qilib olib borgan. Ular onasining qing'irishlariga, aldovlariga yordam bergan. Xususan, sefdagi pullarni olib chiqib ketishda ham ularning qo'llari bor. O'g'li Javlon Shodiyev bilan til biriktirgan. Nozima, Ho'jon. senga bitta kofeni damlashni aytish kerak-ku, uxlayverish kerak-a? Suv qaynash cho'zilib ketdi-da, oyijon. Ha, bo'pti, bo'la qol. Ha. Shirinliklarimiz ham juda yaxshi ketyapti. Yana bitta filial ochsak, nima deysan? Zo'r bo'lardi. Meni biznesim Rasul Rahmonovichning biznesidan o'tib ketish kerak. Shunda dadajon sizga tan beradilar-da, to'g'rimi? Qayerda ochsam ekan? Oyijon, suv bo'yida ochsangiz-chi? Yozda hamma o'sha yerga borib, suvni bo'yida o'tirib, shirlik yeb gaplashib o'tirishadi. Balosan. Yana bitta taklifim bor. Qani, ichingdagini ayt. To'g'ri ovqatlanish xohlaydiganlar uchun shakarsiz shirinlik ishlab chiqarsangiz-chi? Ha, Hozir hamma to'g'ri ovqatlanishga o'tib ketgan. Shunaqa narsalar urfda hozir. to'g'ri aytasan. Bu taklifingni ham o'ylab ko'rish kerak. Oyijon, o'zi hech sezganmisiz? Men noto'g'ri gapirmayman.
Suvi bo'yda ochish kerak. Chunki hozir mavsum. To'g'ri aytasan. Suvni bo'yda ochamiz. Sudda ayblanuvchini aybdor deb topib va qonunda belgilangan jazoni tayinlanishini so'rayman. Hurmatli sudya, prokuror tomonidan taqdim etilgan dalillar diqqat bilan o'rganilishi lozim. Ayblanuvchi haqiqatdan ham jabrlanuvchi bilan aloqada bo'lgan. Ammo munosabatlarni o'zi firibgarlik sodir etilganini avtomatik ravishda anglatmaydi. Sud e'tiborini shu holatga qaratmoqchiman. Jabrlanuvchilar pul mablag'larini va mol-mulklarini ixtiyoriy ravishda berishgan. Ayblanuvchilar boshdanoq pulni o'zlashtirish maqsadida harakat qilganini tasdiqlovchi to'g'ridan to'g'ri hujjatlar yo'q. Hayotda oradagi munosabatlar turli sabablarga ko'ra buzilishi mumkin. Munosabatlarni muvaffaqiyatsiz tugagani har doim ham jinoyat sodir etilganini anglatmaydi. Agar sud aybini isbotlagan deb hisoblasa ham, farzandlari borligi qilmishidan pushaymonligi kabi yengillashtiruvchi holatlarni inobatga olishingizni so'rayman. Suddan adolatli va qonuniy qaror qilishingizni so'rayman. Hurmatli sudya, maylimi men gapirsam? Gapiring. Men Manzura Ortiqovnaman. Nazokatni dugonasiman. Fuqaro, gap qancha pul haqida ketayotganini bilasizmi? Yo'q. U siz o'ylaganchalik yomon ayol emas. Erkaklarning o'zlari unga turmush qurishni taklifini berishadi. Qimmatli sovg'alarni ham taqdim etishadi. To'g'ri, nazokat biroz yolg'on gapirgan bo'lishi ham mumkin. Ammo bu jinoyat emas-ku. Endi esa hammalari pulimni ber deb yig'ilib o'tirishibdi. Bu erkak kishiga mos emas. Fuqaro, gap millionlar, milliardlar haqida gap ketyapti. Nazokat hech kimdan pichoq tirab menga pul beringlar deb talab qilmagan. Ularni o'zlari berishgan. Faqat aldab olgan. Shunaqami? Men aytmoqchimanki, hurmatli sudya, unga ko'p muddat bermang. U yaxshi ayol. Haddidan oshib. Dostlar, video burada dayandı. Çünkü siz hele kanalımıza abone olmamsınız. Kanalımıza abone olan kimi video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izləmək için kanalımıza abone olun. O'zdan ketib, kibrli erkaklarni o'ziga keltirib qo'ydi. Oilasini oyoq osti qiladiganlar uchun bu jazo. Meni sobiq erim Sodiq Turg'unovcham xuddi shunday inson. Lekin nazokatga uylanib o'zgardilar. Hatto mendan kelib kechirim so'radi. Buning uchun unga rahmat aytaman. Siz bu ayolni taniysizmi? Ha, taniyman. Ism familiyasini nima deb tanishtirgan sizga? Nazokat deb. Ancha vaqtdan beri taniysizmi?
Men bu ayol bilan anchadan beri tanishman. Ya'ni Sodiq Turg'unovichni ofislarga kirgandan beri. Bir mahallada yashaganmiz. Uyingizga ko'p kelib turarmidilar? Yo'q, ko'pmas. Onda sonda. Qizimni ko'rgani kelardi. Siz bilan hech qanaqa oldi berilardi yo'qmi? Yo'q, oramizda hech qanaqa pul bo'lmagan. Balki biror narsa va'da qilgandir sizga. Yo'q. Yo'q. Menga hech narsa va'da qilgani yo'q. Men bularni faqat qizim orqali taniyman. Endi mahallada bir-ikki ko'rib turardim. Shu xolos. Sizni oranglarda hech qanaqa shaxsiy husumat, munosabatlar yo'qmi? Bu ayol bilan bizni o'rtamizda hech qanaqa husumat yo'q. Yo'q. Biz ham suhbatdan bo'lmaganmiz, yaqinroq. Men bu ayolni boshidayoq bilganman, niyatini. Sodiqboyni bir necha bor bu yo'ldan qaytarishni da'vat qildim, lekin o'zi bilganidan qolmadi. Tushunarli. Siz Sodiq Turg'unovichning kompaniyasida hozir ham ishlaysizmi? Yo'q. Alohida bo'lib chiqqanman. Bularga nisbatan boshqa da'voyingiz yo'qmi? Shikoyatlarimni hammasini tergovda ochiq-oydin yozganman. Rahmat. O'tirishingiz mumkin. Alo, Alo. kelyapsizmi Nargiz opa? Ha, Afzal aka uyda emasmilar, ish qilib xalaqit bermaymanmi? Yo'q opa, Afzal aka yo'qlar, sudga ketganlar. Kimni sudi? Nazokat dugonangizni-da. Sudi bo'lyaptimi? Ha, Moskvada qo'lga olib, keyin olib kelishibdi. O'zicha qochib ketaman deb o'ylagan ekanda. Ha, o'xshamadi. O'zi yomon emasdi-yu, faqat shu ochko'zligi boshiga balo bo'ldi-da. Ishdan hammani haydaganicha. Nechta odam oilasiga zarar bergani. Shunaqa. Mayli, unda boryapman. Bo'ldi opa, kelavering, kutaman. Xo'p. Ayblanuvchi Feruza Shodiyeva, sizga so'nggi so'z beriladi. Men nohaq ayblanmoqdaman. Aslida menga ularni hammasi turmush qurishga o'zi taklif bildirgan. Ortimdan gullar yuborishgan, tilla taqinchoqlar, qimmat sovg'alar. Tavba, hammasini o'z ixtiyorlari bilan berishgan. Dostlar, video burada dayandı. Çünkü siz hele kanalımıza abone olmamısınız. Kanalımıza abone olan kimi video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izlemek için kanalımıza abone olun. To'g'ri. Ayrim joylarda yolg'on gapirganimni tan olaman. Ammo seyfdagi pullarni, tillalarni Sodiq Turg'unovich menga o'z qo'li bilan topshirgan. Seyfni kalitini berib, ichidagi bor narsa, umuman olganda hamma narsam sizniki degan. Shuning uchun ham qo'rqmasdan olganman. Bizni zaksimiz bor. Er-xotinmiz. Mana qarang. O'zingiz ayting. Xotin erini pulini ishlatishga haqqi bormi? Haqqi bormi? O'g'irlab ketishingizchi? Hozir aytdim sizga. Men
Siz qo'yayotgan ayblarni qisman tan olaman. Lekin ayrimlariga umuman aloqam yo'q. Shuning uchun ham muhtaram sudya janoblari, menga yengillik berishingizni iltimos qilardim. Sud tanaffus e'lon qiladi. Nazokat. Men siz ham meni sotib ketasiz deb o'ylagandim. Yo'q, unaqa emas. Sodiqboy kelib mendan kechirim so'radi. Uy o'z nomimda qolishini aytdi. Men roziman. Endi qo'rqmay. O'z uyingda yashashing mumkin deb aytdi. Siz uchun xursandman. Opa, sizdan olgan brilliantlarimni qaytarib berishim kerakmi? Mendan sizga sovg'a degandim-ku. Lekin oyijoningiz tergovga kelib, umuman boshqa gaplarni gapirib berdilar. Oyimdan xafa bo'lmang. Qarib qolganlar. Bugun men siz uchun keldim. O'sha gap sizga katta rahmat. Siz bo'lmaganingizda Sodiqboy mendan kechirim so'ramagan bo'lardi. Siz uni ancha o'ziga keltirib qo'ydingiz. Tövbe. Bu işi qilgan ishlarini tamomlaydi. Ko'zimga qarab turib aldayapti. Xudo bilsa onasi uni yolg'on gapirib tuqqanmi? Sodiq Turg'unovich, bu yerda uni yolg'onlari o'tmaydi. Advokati qanaqa hujjat taqdim qilgan Xudo biladi. Bizni pulimizni qaytarib bersa bo'ldi. Qaytariladi. Bundan xavotir olmang. Oyi, to'g'ri gapirdimmi? Hozir. To'ppa-to'g'ri gapirding. Nazokatni o'zgarganini gapirib to'g'ri qilding, bolam. Zora, qo'yib yuborishsa-ya. Oyi, endi nima qilamiz? Advokat yaxshi tayyorlangan, xavotir olma. Hech unaqa o'xshamayapti-da. Tuzukroq gapirmadi ham. Umrim shu panjaraning orqasida o'tib ketadimi? Bo'ldi qal. Qizlarga o'xshab yig'il-urmasdan. Erkakmisan, o'zingni qo'lga ol. To'chning umrim o'tib ketadi, oyi. Qariganimda chiqamanmi keyin? O'chir ovozingni. Olgan narsalarimizni qaytarib beramiz. Shunda jazo yengillashadi. O'zingiz aldamang, oyi. O'zingiz ham ichingizdan siqilib o'tiribsiz-ku. Manzura?
Sen nimaga chiqib olib valdirading? Men rostini gapirdim. Birov senga gapir dedimi? Vijdonim qo'ymadi. Sen shukr qilmaysanmi? Agar men to'g'ri ko'rsatma berganimda, hozir sen yonida o'tirgan bo'larding. Siz o'zi qanaqa erkaksiz? Nega sevib qolganingizni tan olmaysiz? Nega chiroyli ayollarga xushingiz yo'qligini sudda aytmadingiz? O'zinglarni jabrdiyda qilib ko'rsatasizlar. Nazokat siz kutgan munosabatni qildi. Bo'ldi. Ko'p ham aqlli gaplarni gapirma. Asabimga o'ynama. Oyi, yuring. Dostlar, video burada dayandı. Çünkü siz hele kanalımıza abone olmamısınız. Kanalımıza abone olan kimi video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izlemək için kanalımıza abone olun. O'rningizdan turing, sud kelyapti. O'zbekiston Respublikasi nomidan sud hukmi o'qib eshittiriladi. O'zbekiston Respublikasi nomidan va sud raisi tomonidan ochiq sud majlisida fuqarolar Feruza Shodiyeva va Javlon Shodiyevga nisbatan jinoyat ishi ko'rib chiqildi. Sud tergovi davomida aniqlanishicha, Feruza Shodiyeva o'zining o'g'li Javlon Shodiyev bilan oldindan til biriktirgan holda bir necha fuqarolarni ishonchiga kirib, ular bilan oila qurish va birgalikda hayot kechirish haqida yolg'on va'dalar bergan. Ayblanuvchilar ushbu harakatlari orqali jabrlanuvchilarning pul mablag'lari, transport vositalari va boshqa mol-mulkini qo'lga kiritib, ularga katta miqdorda moddiy zarar yetkazgan. Sud jabrlanuvchilarning ko'rsatmalari, guvohlar bayonotlari, bank hujjatlari, yozishmalar va boshqa dalillarni tekshirib chiqib, ayblanuvchilarning aybi isbotlangan deb topdi. Sud ayblanuvchilarning qilmishlari ijtimoiy xavfli ekanligini, jabrlanuvchilar sonining ko'pligini va yetkazilgan zarar miqdorini hisobga oldi. Shu bilan birga sud ularning shaxsiga oid ma'lumotlarni ham inobatga oldi. Sud hukm qiladi. Feruza Shodiyeva va Javlon Shodiyev O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 2-qismi B bandi bilan aybdor deb topilsin. Feruza Shodiyeva va Javlon Shodiyevga 5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jabrlanuvchiga yetkazilgan moddiy zarar aybdorlardan undirilsin. Hukm ustidan qonunda belgilangan muddatda shikoyat yoki protest keltirilishi mumkin. Jazoni o'tash umumiy tartibli koloniyalarda belgilansin. Sud majlisi yopiq deb e'lon qilinadi. Tabriklayman. Rahmat. Sizga aytgandim oyi. Meni aralashtirmang degandim. Hammasini siz qildingiz. Meni
5 yil umrim qamoqda o'tadimi endi? Bo'ldi qil. Hayotimni barbod qildingiz. Birga yeganimizdan keyin birga to'laysan. Bu yerdan chiqqanimdan keyin sizni ko'rmayman degan umiddaman. Menga ham tinchroq bo'ladi. Ikkita dangasani boqishdan charchadim. Tezroq. Yuring. Chiqing. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mumkinmi? Keling. Keling xizmat. Meni qizimni shu yerda deyishgandi. Ismi nima qizingizni? Dilnoza Rahimova. Kechirasiz. Biz ma'lumot bera olmaymiz. Kimsiz o'zi? Nima qilasiz? Men sizni tanimasam. Hujjatingiz bormi o'zi? Ha? Hujjatlarimni kirishda ko'rsatdim. Qizim bu yilni boshida 18 yoshga kirdi. Meni to'g'ri tushuning. U meni yolg'iz farzandim. Uni ham mendan boshqa hech kimi yo'q. Tushunarli. Mayli. 18 ga to'lgan bo'lsa, ko'rib bera olaman. Iltimos. Hozir. Xo'sh, ismini nima dedingiz? Dilnoza Rahimova. Bizda unaqa qiz yo'q. 18 ga kirgan bo'lsa, menimcha Muruvvat uydan chiqarilgan. Qayerga chiqarilgan? Ko'pchilik qarindoshinikiga ketadi. Keyin yana o'qishga kiradi yoki ijaraga chiqadi. Ijaraga? Men endi qayerdan qizimni topaman? Keling, yaxshisi men sizga yordam beraman. Hozir ko'rib beraman. हाय गाइज एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे, श्री कृष्ण, जय श्री राम। तो दोस्तों, आप कैसे हो? आई होप आप भी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपसे बहुत कुछ बात करने वाले हैं। आज थोड़ा वीडियो लंबा चलेगा। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का मज़ा तब आता है कि दोस्तों आपका सपोर्ट रहे। काफ़ी फॉलोअर्स भी है और व्यूज़ भी आता है, लेकिन आप दोस्तों का अभी सपोर्ट पूरा नहीं मिल रहा है। दोस्तों, आपका सपोर्ट मिलेगा तभी तो मैं आने वाले समय में एक अच्छा वीडियो डाल पाऊँगा।
और आज मैं इधर घूम रहा हूँ दोस्तों, आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे प्लाट कटे हुए हैं और धीरे धीरे काफ़ी डेवलपमेंट भी हो गया है। और ये साइड में देख रहे हो जहाँ प्लाट कटे हुए वहाँ पे मकान भी बन गए हैं, फ्लैट बना रहे हैं, कोई पर्सनली अपना प्लाट की बाउंड्री करवा रहा है, सारा काम चल रहा है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ मेन रोड है जो यहाँ से 300 मीटर दूर है, जो आपको ये ग्रेवल रोड दिखाई दे रही है, इसी के आगे 300 मीटर दूर है। तो दोस्तों आपका पूरा सपोर्ट रहेगा तभी मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। पिछले 10-15 दिन से देख रहा हूँ कि व्यूज भी कम आ रहा है, सपोर्ट भी कम मिल रहा है। वीडियो में मैं डेली डाल रहा हूँ, 5000 फॉलोअर्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं और व्यूज भी एवरीडे 10,000 के आसपास लोग मुझे देखते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें ताकि मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। और मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं कि मैं एक यूट्यूबर बनूं। आने वाले समय में मैं यूट्यूबर नहीं बन सकता। मैं दोस्तों आपको हकीकत बता रहा हूं कि मेरा खुद का काम है कंस्ट्रक्शन का, जो मैं बड़े बिल्डरों से कांटेक्ट करके उनसे साइड लेता हूं और बेरोज़गार मिस्त्री होते हैं, हेल्पर होते हैं, उनको रोज़गार देता हूं। 2-3 जगह मेरी साइड चल रही है और मैंने ये कंस्ट्रक्शन लाइन का काम अपने बिग ब्रदर भाई से सीखा है, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिला। आज उसी की देन है कि मैं जहाँ भी फील्ड में जाता हूँ तो मुझे आगे से आगे साइड मिल जाती है। और मेरा मकसद है दोस्तों कि आने वाले समय में मैं आज मेरे पास 50-60 आदमी काम कर रहे हैं 2-3 साइडों पर। आने वाले समय में हज़ारों वर्करों को रोज़गार देने की टारगेट रखा है कि बेरोज़गारों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं रोज़गार दूं और उन्हीं से मेरा खर्चा चलता है और मेरे माध्यम से उनका खर्चा भी चलता है। अभी मेरी लेबर गांव गई हुई, अभी मैं फ्री हूँ। बात चल रही है 2-3 जगह से, प्रतापगढ़ से भी आ सकती है, बाड़मेर से भी आ सकती है और एक MP में श्योपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ से भी लेबर आने वाली। इस समय थोड़ा सीज़न चल रहा है खेती का, जो उसमें अपनी खेती लगाने पर लगे हैं मज़दूर। जैसे ही खेती से फ्री होंगे तो वो अपनी बिल्डिंग लाइन के काम पर अपनी साइडों पर आ जाएंगे, उनको बार-बार करने की ज़रूरत है। और मैं जिस जगह ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस जगह वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ, प्लाटों की बाउंड्री बनी हुई है और प्लाट बने हुए भी हैं और काम चालू है, काफ़ी डेवलपमेंट ग्रोथ में है दोस्तों। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ कैमरे में लाइव में जो परदेसी लोग रहते हैं कच्ची बस्तियों के, इनको भी मैं लाइव दिखा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। आप देख सकते हैं मेरे कैमरे के पीछे कच्ची बस्तियों के मकान है जहाँ इनका रहने का ठिकाना है। आज यहाँ कल वहाँ, ये भी अपनी मजदूरी के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं और सुबह अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। तो इस प्रकृति पर कई तरह के इंसान रहते हैं और सबको अपना अपना काम पसंद है, जो काम उनको अच्छा लगता है वही काम करते हैं दोस्तों। और अब मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कम से कम 50-60 कच्ची बस्तियों के घर हैं, देख सकते हो आप। कैमरे के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और JDA का भी यहाँ डेवलपमेंट काफ़ी देखने को मिल रहा है। यहाँ कच्ची बस्ती जो यहाँ खाली प्लाट है, जहाँ कोई काम चालू नहीं, वहाँ पर मज़दूर लोग रहते हैं और अपना
जीवन यापन करते हैं। तो दोस्तों ये मेरा YouTube चैनल 4-5 साल पहले का पुराना है। पिछले 3 साल में मेरे कोई कारणवश मैं बना नहीं सका, ना वीडियो डाल सका, ना मैं YouTube पर आ सका, ना मेरे चैनल के लिए मैं कुछ कर सका। कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जो हर किसी के साथ शेयर नहीं की जाती। लेकिन अब मैं पूरी तरह फ्री हूँ दोस्तों, अपने काम पे ध्यान और अपने चैनल पर पूरा फोकस है। आप जैसे दोस्तों का सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा, मेरे वीडियो पर लाइक फॉलो व्यूज़ मुझे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आपके इस प्यार से ही मैं कंस्ट्रक्शन से संबंधित वीडियो भी डालूंगा, जो फ्लैट बनते हैं, बिल्डिंग तैयार होती है, उनके बारे में भी डालूंगा। और जब साइट चलती है तो परमानेंट लेबर ज़्यादातर मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में रखता हूँ। कभी कभी ऐसा इशू आ जाता है दोस्तों कि महीना 1.5 महीने साइट भी बंद रह जाती है, क्योंकि अगर लेबर परमानेंट चलती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। आदमियों को भी जो परमानेंट लेबर रहती है तो सुबह उठकर अपने काम पर लग जाते हैं, और उचनती हम लेबर लेके आते हैं तो उनको लाने ले जाने में थोड़ी परेशानी होती है, तो इसलिए हम परमानेंट लेबर लेकर चलते हैं। तो दोस्तों कोई भी भाई अगर काम करने का इच्छुक हो, मिस्त्री हो या फिर हेल्पर हो, तो हमारे से संपर्क कर सकता है और हमारी साइट पर वो परमानेंट काम कर सकता है। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर जहाँ JDA की कॉलोनी कटी हुई है। मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर डामर रोड बनी हुई है, ये देख सकते हो आप। लाइन का भी, बिजली लाइन की भी व्यवस्था हो चुकी है, डामर रोड डल चुकी है, और ये प्लाट कटे हुए हैं, JDA ग्रुप के हैं। और आज सुबह के ये 9:15 का टाइम है, बारिश का मौसम हो रहा है। कल दिन भर और शाम तक काफ़ी गर्मी और उमस रही। आज संभावना बन रही है कि दोस्तों आप देख सकते हो, आपको मैं मौसम दिखा रहा हूँ कैमरे के माध्यम से, कि बारिश की पूरी संभावना हो रही है। तो बारिश के मौसम में दोस्तों घूमना आपको कैसा लगता है? ठंडे मौसम में घूमना सेहत के लिए अच्छा रहता है, और लगता भी बहुत सुहाना मौसम लगता है बारिश का, जब मौसम ठंडी हवा चले और घूमना फिरना। देखो हमारे सामने ये जो कच्ची बस्तियों के लोग हैं, जो कोई पिकअप रखता है, कोई ट्रैक्टर रखता है, सब अपने अपनी मजदूरी पर जाते हैं। सुबह 8-9 बजे निकल जाते हैं ये लोग, जो भी इनको काम पसंद है या फिर मार्केट में जो जैसा इनका काम मिलता है ये काम करते हैं, और 5-6 बजे अपने घर लौट आते हैं। और बारिश होने से पहले, आज के 10-15 दिन पहले यहाँ बारिश हुई थी, तो ये घास जो आपको हरी दिख रही है, ये भी हरी नहीं थी, सूखी हुई घास थी। अब देखो कैसा हरियाली छा गया। तो दोस्तों मेरे चैनल का नाम है महादेव बॉलीवुड नाम है, जो पिछले 4-5 साल से इस पर कोई वीडियो नहीं डाल पा रहा था, इशू होने के कारण मैं नहीं डाल पा रहा था। और अब मैं दिन रात उसी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। अपना जो कंस्ट्रक्शन लाइन का वर्क है उस पर भी फोकस दे रहा हूँ और अपने चैनल पर भी दे रहा हूँ। तो दोस्तों मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ताकि मैं एक रिलेटिव वीडियो, एक ऐसा व्लॉग वीडियो बनाऊँ। आपका प्यार मिलेगा, आपका सपोर्ट मिलेगा, तभी तो बना पाऊँगा मैं। अब आप यहाँ पर अब ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर प्लाट के बाउंड्री है, और ये पूरा जो मैं इलाका आपको कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूँ, ये पूरा JDA प्रूफ है। बिल्डिंग अभी बन रही है, बिल्डिंग में आपको दिखा दूँ, ये फ्लैट दिख रहा है आपको, बाउंड्री भी है, फ्लैट बन चुका है।
एक आपको संस्था भी दिखाने वाला हूँ यहाँ पर आसपास के एरिया में। ये जो पीला कलर की जो 4 बिल्डिंग जो दिख रही है, यहाँ से थोड़ा दूर है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ पूरा क्लियर। तो ये स्कूल भी है बच्चों की, और आपको सामने दिखाने वाला हूँ इधर का लुक। जो बिल्डिंग दिखेगी आपको कैमरे में दोस्तों, काफ़ी दूर है वो। ये बिल्डिंग का काम चल रहा है। तो दोस्तों, जो भी मेरी YouTube फैमिली है, Facebook फैमिली है, Instagram फैमिली है, मैं सभी भाइयों को वीडियो को फॉलो, शेयर, लाइक करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ उनका पूरा। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के ग्रुप में डालें, ताकि मेरा वीडियो भी आगे से प्रोग्रेस करे। और जो मेरा टारगेट है दोस्तों, आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन आप सभी दोस्तों को मैं आज बताने वाला हूँ। मेरा टारगेट है कि मेरा कंस्ट्रक्शन लाइन का वर्क का स्ट्रेंथ, वो यानी कहने मतलब उनका ग्रोथ इस तरह बढ़े कि मैं अधिक से अधिक बेरोज़गारों को रोज़गार दे सकूं, और उस कंस्ट्रक्शन के माध्यम से मेरा भी खर्चा चलता है, और जो बेरोज़गार मज़दूर होंगे उनको भी एक अच्छी पगार मिले। जो मार्केट में प्रेजेंट में 700 से 800 हेल्पर की और मिस्त्री की 1100 से 1200 की लगभग दिहाड़ी चल रही है, वो प्रॉपर उनको मिलनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आगे मैं आपके लिए अच्छे एक ब्लॉग या शॉर्ट वीडियो जो भी मैं बनाऊँ आपके पसंदीदा वीडियो ले आऊँ, ताकि आप मुझे पसंद करें। अभी मैं थोड़ा इस कंस्ट्रक्शन की लाइन के काम के विचार से मैं थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, अच्छे वीडियो बना नहीं पाता हूँ, कभी समय नहीं मिलता, और थोड़ा बहुत समय निकाल पाता हूँ उसमें मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। और कई यूट्यूबर के माध्यम से मैंने ये भी सुना है कि दोस्तों आप जो वीडियो डालते हो कंटिन्यू डालते रहो, आप व्यूज़ की, सपोर्ट की और इनकी चिंता नहीं करना, डेली ऐसा वीडियो करो कि ऑडियंस आपकी तरफ एक्टिव हो। तो मैं एक ऐसा नया तरीका ढूंढ रहा हूँ कि मैं भी एक ऐसा वीडियो लेके आऊँ कि ऑडियंस और मेरे दोस्त जितने मेरे वीडियो को लाइक, फॉलो, शेयर करते हैं, उनके लिए मैं अच्छी वीडियो लेके आऊँ। तो दोस्तों जीवन में बहुत कुछ करना है। 15 साल का स्ट्रगल चल रहा है, मैं आज ये आपके सामने बता रहा हूँ, वो कोई झूठ नहीं है। और मैंने आज तक अपनी लाइफ में हार नहीं मानी। आज भी मैं अपनी उम्मीदों को और अपने सपनों को साथ लेकर चल रहा हूँ, और मुझे विश्वास है कि आप जैसे भाइयों का और दोस्तों का मुझे सपोर्ट मिलेगा, तो आने वाले समय में मैं इस योग्य बन जाऊँगा कि मैं किसी की सेवा करने का मुझे मौका मिल जाएगा। तो आपके सपोर्ट से मुझे दोस्तों मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी अच्छा नज़ारा लगता है। आप देख रहे हो, चारों तरफ मैं दिखा रहा हूँ आपको, हरियाली हरियाली दिख रही है दोस्तों। फ्लैट बने हुए हैं, लाइट, बिजली के पोल, रोड वाइड डल गए हैं, उन पे लाइट की भी व्यवस्था हो रही है धीरे धीरे। आने वाले समय में एक ये बहुत अच्छा सिटी बनेगा, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरे के माध्यम से। और आज मेरा खुद का भी किसी मित्र से मिलने के लिए मुझे 1200-1300 किलोमीटर दूर जाना है। पटना जाना है, पटना से फिर झारखंड जाना है। पिछले 2-3 महीने से उससे बातचीत चल रही है। वो बोलता है कि दोस्त आप एक बार मेरे से मिलने के लिए आओ, तो मैं
आज शाम तक यहाँ से निकल जाऊँगा और एक डेढ़ रोज़ लगेगा जहाँ मैं अपने मित्र के पास पहुँच जाऊँगा। तो सभी यूट्यूबर भाइयों से, इंस्टाग्राम फैमिली से और फेसबुक फैमिली से जो भी बंदे जुड़े हुए हैं, जो भी यूट्यूबर है, वो एक दूसरे का सपोर्ट करो और एक दूसरे की हेल्प करो। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो यूट्यूबर जिनका फेमस वीडियो चल रहा है, उनके नाम पर फर्जी वीडियो डाल रहे हैं और हर किसी को पैसे का झांसा देकर लूट-पोस करने पर लगे हुए हैं। तो दोस्तों ऐसा मत करो, ऐसा करने से कुछ नहीं होता। जो आपके मेहनत का होगा वो ही आपके काम आएगा। अगर आप बिना मेहनत के और बिना कुछ प्रयास किए हुए आप किसी का माध्यम, यानी माध्यम का मतलब भाई आप किसी का सहारा लेकर किसी के कस्टमर के साथ आप धोखाधड़ी करते हो तो ये सरासर गलत है दोस्तों। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। और अपना अपना कर्म करें। इंसान का कर्म ही सब कुछ है। जिस इंसान के पास अपने कर्म सही है तो उसे दुनिया की ताकत या दुनिया में कोई भी शख्स उसे हिला नहीं सकता। हाँ, कुछ समय के लिए उसके लिए परेशानी आ सकती है, लेकिन सफलता उसको एक दिन कदम चूमेगी। और ये दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ, ये जेडी प्रूफ की जो ये कॉलोनी कटी हुई है, ये यहाँ पर आ गया। ये सर्किल जो गोल आकार का बना हुआ है, ये आपको कैमरे से दिखा रहा हूँ मैं धीरे धीरे। ये पूरा सर्किल है, चारों तरफ दिख रहा है ना आपको। ये आने वाले समय में इसमें पेड़ पौधे लगेंगे, गार्डन वार्डन से हो जाएगा। सर्किल के जो रेलिंग पाइप लग जाएगा। तो ये जो जितने भी प्लाट कटे हुए हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जितने भी प्लाट कटे हुए हैं दोस्तों, इन सब में जब कोई फ्लैट बनेगा, बिल्डिंग बनेगी, तो ये मेन पॉइंट हो गया ये सर्किल का। जो इसका भी एक ये जो एरिया है इसका एक ये केंद्र बिंदु है, कहने का मतलब केंद्र बिंदु। तो दोस्तों एक दूसरे का सपोर्ट बनाए रखो और एक दूसरे का प्यार बनाए रखो। आज ये जो मैं लंबा वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपना भी कुछ रीज़न होता है, कुछ फीचर होता है, तो उसके लिए मैं बना रहा हूँ। ये जो मैं इधर दिखा रहा हूँ, जो आपको मकान भी दिख रहा है और ऊपर मकान दिख रहा है, जहाँ पास में वो खेती भी होती है। ये जो रोड में दिखा रहा हूँ, इसका जो एंड होता है वहाँ पर किसान की भूमि है और उसका मकान है, खेती भी होती है उधर। बाकी सब एरिया में तो अभी बिल्डिंग लाइन का प्लेट का काम चल रहा है। दोस्तों ये जो मैंने आपको ये डेवलपमेंट का एरिया दिखाया, ये कम से कम आपको छोटा सा लगता होगा, लेकिन बहुत बड़ा एरिया है दोस्तों, बहुत बड़ा। 400-500 बीघा पक्की ज़मीन में ये दोस्तों, 400-500 बीघा पक्की ज़मीन जो आपको दिख रहा है चारों तरफ। और यहाँ से
दूर दूर तक है। ये पूरा डेवलपमेंट एरिया है, आने वाले कल का ये फ्यूचर है जो आज मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। और इस समय हम इस एरिया के लास्ट पॉइंट पर आ चुके हैं। कम से कम जो मेन रोड थी दोस्तों, वहाँ से हम करीबन 1 किलोमीटर के आसपास आ गए हैं। आप सबसे दोस्तों को अपनी दिल की बात बताते हुए, तो मैं एक बार फिर दोहराता हूँ कि मेरे चैनल का नाम महादेव बॉलीवुड यूट्यूब चैनल है। मेरी ईमेल आईडी है narlaomprakash@gmail.com और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 8890062090। तो आप मेंशन कर सकते हो और मेरे भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो, शेयर और अपने दोस्तों के ग्रुप में डालो ताकि मेरा वीडियो भी आगे ऑडियंस के पास पहुंच सके। तो ये आपसे विनती है और रिक्वेस्ट है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आने वाले समय में दोस्तों मैं भी एक अपना अच्छा ब्लॉग वीडियो या शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूं, लेकिन आप सभी दोस्तों का सपोर्ट रहेगा तभी मैं बना पाऊंगा। आज मैं अकेला मेहनत कर रहा हूं और धीरे धीरे आप लोगों का प्यार बनेगा, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा तो आने वाले कल में मेरे पास में पूरी टीम होगी और हर काम का एक टाइम निश्चित होगा। उसी में मज़ा आता है दोस्तों। अभी तो मैं अकेला स्ट्रगल कर रहा हूँ और करता रहूँगा। जब तक मंजिल ना मिलेगी तब तक रुकूंगा नहीं। जब 15 साल में ही मैं नहीं रुका तो दोस्तों आज क्या रुकूंगा मैं। और मेरा एक ही मकसद था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आज, कि अगर आप जीवन में किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत सोचिए और बुरा भी मत कीजिए। मेरा तो एक ही टारगेट है कि लोगों को जितना हो सके मेरे से उतना मैं सेवा करने का ही अवसर प्रदान करना चाहता हूँ। और मेरा तो यही लक्ष्य है कि मेरे जीवन में मैं जिन लोगों के लिए मैंने इतना बड़ा लक्ष्य रखा था जो आज तक ना मेरे अपनों को मैंने बताया ना मेरे किसी दोस्तों को मैंने बताया, भाई जिन पद दलित्र बेसहारों के लिए मैं एक सहारा बनना चाहता था, लेकिन पिछले 15 साल से दोस्तों मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ। कभी कभी तो मन ऐसा भी करता है कि दोस्तों यार सब कुछ छोड़ दें, अपना जीवन जी, क्यों दूसरों की टेंशन लेते। ऐसा फील हो जाता है महसूस, और होता भी है कि इंसान को मेहनत करते हुए अगर सफलता नहीं मिलती है तो ऐसा फील होता है। बहुत कुछ सहा है मैंने मेरी 15 साल की लाइफ में दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं आज भी वही मेरे चेहरे पर रौनक, वही मेरे चेहरे पर स्माइल रहती है, क्योंकि टूटा हूँ अंदर से, बाहर से नहीं। और जितनी हार्ड मैंने जो लक्ष्य रखा है उसको मैंने, लोगों ने तो बहुत चेंज करने की कोशिश की थी कि आप ये कर लो वो कर लो, लेकिन नहीं सुना मैंने सबका, कर रहा हूँ मेरे मन से, और जो मेरी अंतरात्मा कहती है वही मैं करता हूँ। कि जब अपना जीवन भगवान ने दिया है, इस धरती पर आए तो कुछ ऐसा करके जाना है कि पीछे भी हमें याद रखे। ऐसा नहीं कि पीछे रहे वो पीछे से गालियाँ दे या अपने चरित्र पर कीचड़ उछाले। तो दोस्तों जीवन जीने का मज़ा तो उसी में आता है कि आप दूसरों का भला करें, किसी का सहयोग करें, किसी का बोली से सहयोग करें, किसी का आर्थिक मदद से सहयोग करें, किसी को शिक्षा से संबंधित सक्षम करें। सेवा करना हर किसी के नसीब में नहीं होता। और
जिस भाई को भी, जिस मित्र को भी सेवा का मौका मिलता है, किसी की भी मान लो, गरीब की मान लो, अपने माँ बाप की मान लो, किसी की भी, तो ये मानो कि एक भगवान का दिया हुआ एक गिफ्ट मिला है। क्योंकि सेवा करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, बहुत मेहनत करना पड़ता है और इंसान के जीवन में बहुत स्ट्रगल आता है, उतार चढ़ाव आता है कि अगर उसकी आत्मा भी कहे कि मैं किसी की सेवा करूं, तो वो कोशिश करते करते भी नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, हार नहीं माननी चाहिए। जीवन की यही सच्चाई है कि जो इंसान अगर हार मान कर बैठ गया, वो कुछ नहीं कर सकता। तो आज हम इस मोड़ पर हैं कि आने वाले समय में बहुत सेवा योग्य बनेंगे और सेवा करेंगे और मरते दम तक करेंगे। जानता हूँ बुरे वक्त में पीठ पीछे न जाने कौन तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैंने आज तक दोस्तों हकीकत बता रहा हूँ, मेरे पीठ पीछे कोई कुछ भी बात कर रहा है, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया उनकी तरफ। क्योंकि ध्यान इसलिए नहीं दिया कि मेरा लक्ष्य इतना बड़ा है या इतना कठोर है कि अगर मैं पीछे तुच्छ लोगों की तरफ मैं ध्यान दूंगा तो मैं मार्ग से भटक जाऊंगा। तो इसलिए आज तक मैं 15 साल निकाला हूँ, हर गलत संगति में भी जाकर मैं वापस आया हूँ कि उनका मेरे ऊपर असर होने ही नहीं दिया मैं। और भगवान की कृपा भी है मेरे ऊपर कि आज तक किसी की गलत दृष्टि का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा भी नहीं और ना पड़ेगा। क्योंकि जिसके ऊपर हारे की सहारे बाबा श्याम की कृपा है, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों, हमारी पहली जो सफलता होगी किसी भी क्षेत्र में, तो हम उसी दिन से सेवा करने का काम स्टार्ट कर देंगे और जितना हो सके उतना सबको सही शिक्षा और सही रास्ता ही दिखाने की कोशिश करेंगे। किसी के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे हम, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, इंसान को खुलकर जीना चाहिए और हर बात अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर करना चाहिए। कई जगह तो मैंने ऐसा देखा है कि परिवार में 5 लोग हैं, फिर भी अपनी दिल की बात किसी के सामने नहीं रखते, क्योंकि जब तक हम अपने दिल की बात अपनी खुलकर कोई बात परिवार के साथ शेयर नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हर घर में कोई अंतर्यामी नहीं होता है कि हर किसी की दिल की बात महसूस कर सके या सामने वाले को समझ सके। कभी कभी बताना भी पड़ता है, और जो समय रहते बता देता है तो उसका बहुत कुछ सुधार हो जाता है और गलती करने से भी बच जाता है। तो दोस्तों, मेरे 3 चैनल हैं, यूट्यूब चैनल भी है महादेव बॉलीवुड के नाम से, और इंस्टाग्राम चैनल भी है, और फेसबुक चैनल भी है। तो तीनों पर अच्छा व्यूज़ भी आ रहा है, अच्छे फॉलोवर भी है, लेकिन कोई दोस्त ऐसे कमेंट भी नहीं करता कि मैं कैसा वीडियो बनाऊं कि आपको मेरे में इंटरेस्ट है, या फिर मेरे को खुद को ही सोचना पड़ेगा कि उनको कैसा वीडियो चाहिए। मैं अभी दोस्तों समय नहीं मिलने के कारण मैं अपना जो कंस्ट्रक्शन का काम चालू रख रखा हूँ उसी के बारे में मैं वीडियो डालता हूँ ज़्यादातर, या कभी कभी मेरे ऊपर डाल देता हूँ, कभी समय नहीं मिलता। तो दोस्तों, आप अपना सपोर्ट मेरी तरफ करोगे, मेरे वीडियो को ज़्यादातर लाइक फॉलो शेयर करोगे, अपने दोस्तों के ग्रुप में डालोगे, काफ़ी अच्छे व्यूज आएंगे, सपोर्ट मिलेगा आप जैसे दोस्तों का, तो मैं आपकी जो डिमांड होगी वैसे ही मैं वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन अपने कंस्ट्रक्शन से संबंधित जो वर्कर मेरे पास काम करते हैं, हेल्पर भी करते हैं, मिस्त्री भी करते हैं, तो उनका काम तो मेरा रेगुलर रहेगा, चाहे मैं कहीं पर भी रहूँ,
क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी को रोज़गार देकर 2 पैसे कमाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और शुरू से मेरी एक ही आदत है कि जब से मैंने ये काम सीखा अपने बड़े भाई के पास, तब से मैंने यही सोचा है कि हम वही काम करेंगे जिसमें हम 10 आदमियों को काम देकर उसमें से अपनी मजदूरी भी निकालेंगे और उन 10 आदमियों को भी मजदूरी मिलेगी। ये काम मुझे अच्छा पसंद है। और इस कंस्ट्रक्शन का जो काम है, बिल्डिंग लाइन का मान लो, सीसी रोड का मान लो, बीडीसी परस का मान लो, ये सब काम मैं थोड़े दिन में अपनी टीम रखूँगा और उनको सबको अलग अलग अपना प्रोजेक्ट संभालूँगा ताकि अधिक से अधिक युवा बेरोज़गारों को रोज़गार मिले और अधिक से अधिक हेल्परों को भी काम मिले। तो ये मेरी सोच लेके मैं चल रहा हूँ। और मुझे जीवन में क्या बनना है दोस्तों, आप लोगों का इसी तरह सपोर्ट प्यार मिलता रहेगा तो आने वाले बहुत जल्दी मैं आपको महसूस और एहसास करा दूंगा कि मेरे जीवन का क्या लक्ष्य था। जब तक मुझे मेरा टारगेट में सफलता नहीं मिलती है तब तक मैं आपको अपनी मंजिल के बारे में नहीं बता सकता दोस्तों। ये एक खुद का पर्सनल टारगेट है। तो आप लोगों का प्यार बना रहेगा और कंस्ट्रक्शन लाइन में धीरे धीरे मुझे सफलता मिल रही है और मिलती रहेगी। तो जैसे ही मुझे मेरा टारगेट सफल हुआ और मैं आप लोगों के सामने अपनी जीवन का जो टारगेट जो लक्ष्य है मैं आपको बताऊंगा और सभी दोस्तों को बताऊंगा। ये भी नहीं कि मैं किसी एक मित्र को बताऊंगा, सभी भाइयों के साथ शेयर करूँगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों एक बार फिर मैं अपने चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल का नाम महादेव बॉलीवुड है और ये पिछले 4 सालों से मैंने इस पर स्टार्ट किया था। उसमें बीच में कुछ इशू हो गया था ऐसा कि मैं स्टार्ट नहीं कर पाया था। और अब मैं पिछले 3-4-5-6 महीने से रेगुलर हूँ और काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए। और आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा, आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा। और तो मैं नए वीडियो ऐसे बना कर लाऊँगा कि आपका ध्यान मैं मेरी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल का एक बार फिर नाम बताता हूँ, महादेव बॉलीवुड YouTube चैनल के नाम से मेरा चैनल है। जो फेसबुक चैनल का नाम भी यही है, इंस्टाग्राम चैनल का नाम भी यही है और YouTube चैनल का नाम भी यही है। और मेरी ईमेल आईडी है narlaomprakash@gmail.com और कॉन्टैक्ट नंबर है 8890062090। तो दोस्तों इसी तरह अपना प्यार बनाए रखना और अपना सपोर्ट। तो मैं यहीं पर विराम लेता हूँ। आप भी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जितना हो सके सबका सहयोग करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू फ्रेंड, बाय।